Namaskar, welcome Khushamdeed. A breezy, cheerful and a warm morning to a wonderful audience. Today, we, the students of Grade 2C, proudly present before you an enthralling period drama, Bharat, a Khoj, inspired by a well-received book titled Discovery of India, penned down by our very own beloved Chacha Nehru. This drama comprises of 5 scenes depicting the progression of our country, India, through various periods of independence. So, shut the entire world out and for some time live each moment with us and cherish this amazing journey. Hi everyone, what's up? What's going on? Meeting after a long time. Yay! Term 1 is finally over and we all did well. Thank God our parents are happy. But now what next? Time is running. Tell me friends, what's the plan for today? How do we spend our time together? Play Ludo, chess or PS4? No! I don't want to play any of these indoor games. I just want to go out and have some fun under the sun. Hey Nakshatra, what are you saying? Don't you seem to be a little careless and ignorant about the ongoing situation? Alright friends, if going out isn't possible, how about a play at my home tomorrow? That sounds a great idea. Sorry friends, that also won't be possible. Now what? Actually, my sister has a history assessment and she's reading some very heavy book. Some Bharat, something about India. You mean Discovery of India? Wow, that famous book written by our Chacha Nehru. How come you are not aware about this book? Don't you remember our teacher told us that it speaks volume about the country? How I wish कि चाचा नेहरू घर से आ जाए और तुम्हें समझाएं कि क्या है ये बुक. Wow, Chacha Nehru, is that really you or are we dreaming? Oh my kids, none of you are dreaming. I have come here to meet you and tell you about our mother India. Wow, that would be fun. First tell me kids, what do you mean by Bharat Ma? Our motherland, I mean this land, water, rivers, etc. Only land, water, sea is not Bharat Ma. Bharat Ma बनती है हम सब से, वो सभी महान लोगों से जिन्होंने इसे इतना सुंदर बनाया कि आज आप लोग इसकी जयकार कर रहे हो. Chacha Nehru, please tell us about those great people. Alright then, let me take you on a roller coaster ride of time that made me write this phrase of mine known to you all as Discovery of India. Start. रविंद्रनाथ ठाकुर की राय से रामायण और महाभारत को महज एक काव्य मान लेना गलत है. ये दोनों हमारे इतिहास हैं, जहाँ राम की कहानी में वीरता, संयम, त्याग और अभूतपूर्व बलिदान है. वही महाभारत कहानी एक सामाजिक और राजनीतिक संकट की है. ये कहानी आत्मा के उथल-पुथल को
बखूबी दिखाती है जब अर्जुन को अपने ही प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करना पड़ता है। हे कृष्ण, अपने ही बंधु को युद्ध की इच्छा ले देख मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और सूखते जा रहे हैं। गांडीव हाथ से फिसलता जा रहा है। हे केशव, कैसे मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य मेरे पूजनीय पितामह के समक्ष युद्ध करूं? हे पार्थ, तुम धर्म का साथ दे रहे हो। यदि कोई तुम्हारा पूजनीय वचन होकर अधर्म का साथ देगा तो उसके समक्ष तुमको गांडीव उठाना ही पड़ेगा। पर हे केशव, अपने पूजनियों का वध करके हमें हस्तिनापुर मिल भी गया तो फिर उसका कोई मोल नहीं होगा। अर्जुन, तुम कैसे भूल गए जब पहली सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और तब भी तुम्हारे पूज्य उस सभा में उपस्थित थे। क्या तुमने अपने प्रेम भीम की प्रतिज्ञा कभी मान नहीं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और नृत्यशाला में नृत्य का आयोजन करवाएं। नहीं हो सकता ये नाच गाना, राष्ट्र पर संकट आया है, इसलिए तक्षशिला का शिक्षक आपके पास आया है। मूर्ख योगी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने भीतर आने का दुस्साहस कैसे किया ब्राह्मण? ऐसी क्या आपदा आ गई थी कि तूने सम्राट की सभा में रंग में भंग डालने की कोशिश की? अलक्षेंद्र नामक एक यवन योद्धा मिस्र का राज्य उखाड़ कर आगे बढ़ रहा है। बस इतनी सी बात? सम्राट, आपसे विनती है कि भारत की सीमाओं की रक्षा करें। सीमा की रक्षा तो सीमा रक्षक करते हैं, सम्राट नहीं। इसके लिए तो मेरे द्वारपालों से ही कह दिया होता। भारत की रक्षा के लिए मैं आपसे सैनिक सहायता की भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षुक, तुम सम्राट को चुनौती दे रहे हो। अलक्षेंद्र भारत को चुनौती दे रहा है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी विनती पर विचार कीजिए। एक मुट्ठी अनाज मांगा होता तो भी मैं विचार करता, पर तुम तो इसके योग्य भी नहीं हो ब्राह्मण। इससे पहले कि मेरा क्रोध सीमा से बाहर हो जाए, मूर्ख योगी, इस सभा से चला जा। धनानंद, बहुत हुआ आज ये। विष्णुगुप्त अपनी शिखा खोलता है और प्रण लेता है कि नाग साम्राज्य को नष्ट करके ही बांधूंगा। तेरा अंत समय संगीत है धनानंद।
चाणक्य ने अपनी कुटिल नीतियों से यावन, कीरत, कंबोज और वाले के साथ मिलकर एक सेना का निर्माण किया और हमारे देश को मिला एक अच्छा शासक। Ashoka, the grandson of Chandragupta, was an ambitious ruler who had a burning desire to expand the horizons of his kingdom. He won many battles, conquered Kalinga, but for him, this victory, instead of giving him happiness, was a matter of profound grief and sorrow. कितने घर उजाड़ती है, कितने सुहागनों का सुहाग छीन लिया और कितने मासूम बच्चों को अनाथ कर दिया। जा दुष्ट पापी, मैं आज तुझे श्राप देती हूँ कि तू कभी भी चैन से नहीं जी पाएगा। तू सम्राट अशोक भले ही बन गया हो, तूने विजय सिंह की धुन भी भले ही बजाई हो, लेकिन तेरा चित सुख और शांति नहीं पाएगा। मेरा मन क्यों इतना शांत है? चारों ओर अंधकार अंधकार अंधकार। कोई तो मुझे प्रकाश दिखाओ। समस्त विश्व को प्रकाश देने वाले, क्या आप मुझे मन की शांति दे सकते हैं? आप अपने अंदर के दर्द को समाप्त कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को खत्म करके और दूसरों के लिए अच्छे कर्म करके। इन्हीं मुगल शासन के दौरान आना हुआ एक ऐसी अजीम फिरंगी ताकत का जो आए तो भारत में व्यापार करने, पर बहुत जल्द ही उन्होंने हजारों की तादाद में हिंदुस्तानियों को अपना गुलाम बना लिया। वो कोई और नहीं पर थे बरतानिया सरकार की ईस्ट इंडिया कंपनी। इस बेशकीमती आजादी को पाने में हमें 400 साल लग गए। उसकी नींव तो 100 साल पहले ही भारत के एक वीर सपूत ने बरतानिया सरकार के खिलाफ 1857 में रख दी थी। वो था भारत का अमर जवान मंगल पांडे। हाथ
उसका नया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए सातिल में है। हाथ जिनमें हो जुनून वो करते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो छूते नहीं ललकार से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए सातिल में है। इतनी क्रांति होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि हमें आजादी मिल गई। हमारे इन वीर क्रांतिकारियों को बरतानिया सरकार ने सूली चढ़ा दिया। फिर ऐसे में आया एक ऐसा महात्मा जिसे अपनी अहिंसावादी नीतियों से उन अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, और वो था साबरमती का संत, हमारे महात्मा गांधी बापू। हमें हिंसा से नहीं, अहिंसा से काम लेना है, और हमें विदेशी चीजों का बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तु को धारण करना है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बापू की नॉन कोऑपरेटिव एंड क्विक इंडिया मूवमेंट के सामने अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। ये थे सच्चे हिंदुस्तानी जिन्होंने भारत को महान बनाने में पूरा योगदान दिया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे अंदर के राम, कृष्णा, गांधी को जगा सकूं। Now I got it. India means all those immortal leaders who laid their lives to make our country great. उन सभी वीर सपूतों को हमारा शत नमन। बहुत सही कहा आपने। Today we all promise that we will inculcate nationality and patriotism and to take pride in our solidarity. Of various periods in India, we have learned that our country has been the birthplace of many great leaders and unsung heroes. Thank you for joining us in our journey and supporting us every step of the way. Here's to all our inspirational leaders. May we know them and may we be them. Thank you.